Hare Krishna. Hare Krishna. So we are really very fortunate that we have among us His Grace Venugopal Prabhuji. So Prabhuji has done his MTech from Jadavpur University, and Prabhuji is practicing Krishna consciousness since last 25 years and more. And Prabhuji has done his PhD from BHU in Chhat Sandarbha. और प्रभु जी का जो कॉन्सेप्ट्स हैं भक्ति के सिद्धांतों को लेके और जो भक्ति शास्त्रों को लेके बहुत डीप है। इनफैक्ट प्रभु जी प्रेफर करते हैं कि वो सीरीज ऑफ लेक्चर्स यानी पूरा बुक कंप्लीट करें सो दैट डिवोटीज से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बट कैंप में हम प्रभु जी को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे 1 घंटे में। बट प्रभु जी का जो नायक है बहुत ही डीप है शास्त्रों में। हमने एक कोर्स प्रभु जी से किया था द्वारका में माधुर कादम्बरी के ऊपर। इट वाज रियली एन अमेजिंग सेशन, पूरा कोर्स था। और प्रभु जी साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी प्ले कर रहे हैं इस्कॉन में। सो प्रभु जी इस्कॉन दैवी वर्णाश्रम मिनिस्टर, बहुत बड़ा पोस्ट है इस्कॉन के अंदर, एक मिनिस्ट्री संभालना पूरा। प्रभु जी सिंगल हैंडेडली उसमें भी सेवा कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ जो मायापुर की जो लैंड है, आई थिंक 200 so more than 200 एकड़ लैंड प्रभु जी उस पे उसको पूरा कल्टीवेट करते हैं। पूरी प्रभु जी फिजिकली इन्वॉल्व है। आप प्रभु जी को देखेंगे लगेगा नहीं कि प्रभु जी ने बड़े लेवल पे सेवा कर रहे हैं। जाके वहाँ पे फावड़ा चला रहे होंगे, पानी डाल रहे होंगे पेड़ों में। हमें ले गए थे प्रभु जी खेतों में वहाँ पे। तो बहुत ही बेसिक लेवल, ग्राउंड लेवल से लेके टॉप लेवल की सर्विस प्रभु जी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मायापुर यात्रा होता है उसमें हिंदी ग्रुप जो होता है, आई थिंक उसमें मोर देन 2000 डिवोटीज के आसपास आते हैं, वो भी प्रभु जी लीड करते हैं। प्रभु जी के संरक्षण में होता है। तो प्रभु जी के शास्त्रों में बहुत डीप उनका रुचि है, अंडरस्टैंडिंग है, फेथ है। साथ ही साथ भक्तों के साथ बहुत मधुर संबंध है, भक्तों को भी बहुत टाइम देते हैं प्रभु जी। और सेवाएं भी फिजिकल रूप से करते हैं। तो हर तरीके से जो एक डिवोटी होना चाहिए परफेक्ट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल, वैल्यूज, प्रैक्टिसेस, एवरीथिंग। So that ideal example we have among us is this Venugopal Prabhuji. So let's welcome Prabhuji by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Then Venugopal Prabhuji ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Thank you very much for all of you for inviting me and giving this opportunity to have some little whatever interaction and also having some we'll discuss. Audible? Hare Krishna. This is clear. How are you? कैसे हैं आप सब? Happy? How many of you come first time to Mayapur? Mostly. Wow. How is Mayapur land? Blissful, na? Very nice place. This is spiritually and also materially in all the ways. We have a lot of greenery and river, everything. It's really the most luxurious place. So today we are going to discuss Hindi or English or both. Huh? Both. Okay. तो आज हम लोग पढ़ेंगे माने चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद जी का मिशन, और उसमें हम लोग खास करके संकीर्तन मूवमेंट इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब भी कोई भी एक आचार्य तो प्रचार करते हैं उसके लिए एक प्लानिंग रहता है। जैसे अभी कोई भी एक व्यक्ति घर बसाना चाहते हैं, if someone wants to make a house or otherwise wants to enter into a family life, generally he'll be having the planning. Even like a father, mother, even parents, they'll be having the planning for a child, what he has to do in future, what he has to study. Like that they do planning or not? Yes. Even a farmer, even a businessman, everyone, they make the plans before they start any venture.
So, similarly, Srila Prabhupada, so maybe if you have books, copies, you can write few things, which is good for remembering in future actually. So, yeah, you all have the notepad in the mobiles. Mobile technology is there, okay? So we can see Srila Prabhupada is also having a systematic planning behind the starting this movement. Because Prabhupada is our savior, our life and soul. And because of him, we are here actually. And of course, we have our immediate gurus. But the mercy is coming directly from, mainly from Srila Prabhupada. And it is flowing through our gurus and also our existing Siksha gurus. And he has a huge plan, very systematic plan behind this movement. This movement is having the 4 phases. This Krishna conscious movement is having 4 phases, or 4 sub-movements actually, we can take like that also. The first one is Sankirtan movement. You can write it, Sankirtan movement. Second one is temple worship movement. Sankirtan movement, temple worship movement. The third one is initiation movement. And fourth one is Sudaiva Varnashrama movement. Like this, there are 4 phases or 4 sub-movements in this Krishna conscious movement actually, total. So these things Prabhupada mentioned in his letter to Sardar Vallabhbhai Patel in 1949. So he has a sketch actually, how to spread this Krishna consciousness in a systematic way in this society. For this he was having a systematic planning. So this he presented to Vallabhbhai Patel. And same thing he wrote after that in 1950s. He wrote Gita Nagari essay. In that essay also he mentions this. So these 4 phases he elaborately explains. So today we are going to see each and every one movement. So first movement is, what is that first one? Sankirtan movement. So Sankirtan movement means, so you can, if you have Veda base, folio, Bhaktivedanta Veda base, there also you can find this letter in correspondences, 1949 correspondence. If you see, there also you can find. So Prabhupada is saying here, the first movement what it does. So, in the opinion of this Srimad Bhagavatam, one who is imbibed with the devotion of Godhead is also endowed with all the good qualities of the gods. But one who is not a devotee of Godhead has not any value for his good qualities, because he utilizes his so-called good qualities for ulterior purposes. As such, the easy way to raise the moral standards of people in general is to make this Sankirtan movement more popular all over the world by philosophical discourses based on reasoning and moral and ethical codes. Actually, this Sankirtan movement means, first Prabhupada what he want? He want to send the devotees to the different parts of the world and do the holy name in a louder way. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So the main core part of this Sankirtan movement is chanting holy names loudly, on the streets, in the different parts of the world, in the cities, in the villages. And along with that, in the Sankirtan movement, one more thing is also added. What is that? Philosophical discourses. So that means distributing the books is also part of Sankirtan movement. So Prabhupada wanted rigorously all the books has to be, whatever the books he wrote, he wants to see spreading of these books everywhere.
and not only just spreading on philosophical discourses based on reasoning and moral and ethical codes. He wanted to see, so devotees should study these books very thoroughly, deeply, with reasoning and also moral and ethical codes. And Prabhupada is saying in this moment further, the Vaishnava Acharyas, especially Lord Chaitanya and his 6 Goswami disciples, give us ample opportunity and scope for this work. The initial inauguration is done by whom for this Sankirtan movement? Chaitanya Mahaprabhu. The initial Sankirtan movement began from where, you know? From land of Mayapur. So you are there now. You are also fortunate. So this Sankirtan movement began from here. And Prabhupada wanted, and this is the very, very important. And also we will discuss little more about the appearance of Lord Chaitanya. Some reasons we'll discuss today. So Chaitanya Mahaprabhu is nothing but Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. And Krishna is, sorry. Sorry. Let me switch off this. Other issues. So, Mahaprabhu is nothing but Krishna, and Krishna is the Supreme Personality of the Godhead. In Charitamrita, we have seen, we can see there also, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. How can we say? How Krishna is Supreme Personality of Godhead? Some people they say Krishna is Avatara. Yes or no? Some people they say. But how can you say Krishna is the Supreme Personality of Godhead? Because he claimed himself. He claimed himself. I will also claim myself. Because nobody is greater than him, or nobody is even equal to him or greater than him. 6 qualities. Everybody. 6 qualities. 6 qualities other Vishnu is also having. Shastras says. Shastric conclusions. What is that conclusion? Shastra says? Srimad Bhagavatam, where it is said. This is correct actually. Shastras, they say. Srimad Bhagavatam, in 3rd chapter, 1st canto, it is said, Ete Chamsa Kala Pumsa Krishnastu Bhagwan Swam. Yes. So there it is told that Krishna is Swam Bhagwan. Yes, very good. Krishna is Swayam Bhagavan. But Krishna is also counted in the avatars. There it is said Krishna is avatar. Oh, that Ete Chamsa Cha Ansa. There it is said that Cha Ansa is all the incarnations, but in all the incarnations, in all the avatars, that Krishna is the source of all the avatars. Yes. So, very good actually. Anyone wants to say anything else? So, if you see in the Bhagavatam, so how Bhagavatam actually, if you see Saunaka the Rishis, they ask questions. After that, in that question, so one of the question is, so why Krishna took birth in the womb of Mother Devaki? And also, they ask Saunaka the Rishis, what is the various leelas of Krishna and what are his various avatars? In reply to these questions, Sutta Goswami began in 2nd chapter of Srimad Bhagavatam, 1st canto. He started saying, Krishna, so directly he says that your all questions are centered around Krishna, and he explains about the bhakti towards Krishna, and finally he mentions various avatars. Krishna takes various avatars and he is the creator, maintainer and destroyer. Then after that, in the 3rd chapter of the 1st canto, there he says,
Bhagavan has taken the Purusha avataras. Jagruhe Paurusham Rupam Bhagavan Mahadadibihi. There he mentions Bhagavan takes the Purusha avatars, and that Purusha avatara is the cause for the list of avatars. That means Krishna, he didn't say who is the Bhagavan. So he began with the what sloka? Bhagavan is going to take the Purusha avataras, he is manifesting Purusha avatara, and that Purusha avatara is also having another expansion, that is the Garbhodaka Sai Vishnu, and from there, so we can see various avatars. Like then he started saying Kumaras, Narada, Kapila, like that, Vamana, Matsya, Varaha, Kurma, like that. He mentioned the list of avatars. In that avatara, who came, whose name came? Krishna's name also came. That means this third chapter is like an index for the total Bhagavatam. That means total avatars whatever Krishna performed in a declaration form. These are mentioned. All the list of avatars are mentioned in which chapter? This third chapter. So that's why this chapter is one way it can be said as what? Index of Srimad Bhagavatam. So in that index chapter, Krishna is mentioned initially as what? One of the avatar. So if anyone read here, then automatically what you will understand? Oh, Krishna is also avatar of Vishnu. It means Purusha avatars. Purushas means Karna Sai Vishnu, Garbhodaka Sai Vishnu, Kshira Sai Vishnu. These are all known as Purusha avatars. So anyone can understand now these avatars. Krishna is also one of the avatar of these Purusha avatara. So then after that, he is mentioning Krishna as also one of the avatara, and finally he is coming to one more place. Further Suta Goswami comes and he gives a specific information about Krishna. After mentioning all the Varaha, Matsya, Kurma, Vamana, all the Purusha avataras, everything he mentioned, that means in the mind of Suta Goswami, all avatars are there. And that means in front of him, like, assume that there are all avatars are there. Now he is saying among all these avatars, this Krishna, Krishnastu Bhagavan Swayam. What he is saying? Of course, these are all avatars are there, but among these avatars, but this Krishna, he is Bhagavan, the one who took the Purusha avatar. That means in the first sloka he said, Bhagavan took the Purusha form. Bhagavan manifested the Purusha form. And that this Krishna is that Bhagavan. Sleeping, huh? Philosophy comes means generally we switch off the brains. No, na? Difficulty feeling? No. You're understanding? Yes. So, like this, Krishna is established as what? As the Bhagavan, the one who is cause for the Purushas, and those Purushas are cause for the avatars. Then why he mentioned in the avatars? Directly he could have said. What is the purpose behind mentioning Krishna as one of the avatara? ये तो भी आंसर करना है ना लोगों को। तो ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, तो वो तो सभी पुरुष अवतार जो अवतारों को कारण है वो पुरुष अवतार है, उसके लिए भी कारण होते तो उनको अवतारों में नहीं मेंशन करना चाहिए। क्यों किया है ना? तो प्रश्न पूछना या नहीं, एक लायर की जैसा तो पूछना चाहिए। तो क्यों मेंशन किया सुत गोस्वामी जी? क्यों ऐसा किया? कारण पता है? उसका कारण है, माने ये बोलना चाहते हैं सुत गोस्वामी, भले वो भगवान है लेकिन वो भी दूसरे अवतारों जैसा दुनिया में मैनिफेस्ट होता है, वैसा वो भगवान होते हुए भी अवतारों की जैसा डिसेंड होते हैं और लीलाएं करते हैं। ये बोलने के लिए उधर अवतारों की लिस्ट में उनका भी नाम दिए हैं, देकर बाद में ये बोले हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या बोले हैं, लेकिन ये अवतार लगता है लेकिन आप लोगों को, लेकिन कहानी लेकिन ये
ये अवतार नहीं है और अवतारी भी नहीं है। ये कौन है? अवतारी का भी कारण है। अवतारी कौन है? पुरुष अवतार, वो अवतारी। इसीलिए ये ते चांश कला पुंसः, all these kalas and so amshas are coming from where? From the pumsa. That means pumsa is what? Purusha avatara. Purusha is the cause for all the avatars. And that means Purusha became now avatari. And but that Purusha is coming from whom? From Krishna. This is the conclusion of Sutta Goswami. So, and that Krishna came in the form of Chaitanya Mahaprabhu. So we can see Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Like this we can see in the other places also. Brahmaji also says this Krishna is the cause for all the Purusha avatars, and he is the cause of all the Kalyas. And also in another place we can see like this many places Krishna is, like example, all the Atra Sargo Visargasthanam Poshanam Utaya. There are 10 topics in Srimad Bhagavatam. And what is the purpose of 9 topics? First 9 topics, just to know the 10th topic, Ashraya Tattva. So that Ashraya Tattva is nothing but who? Krishna. This is mentioned by Sridhar Swami. So anyway, I will not take you into more those things. Now I will come to the next point. When Sachi Krishna, one day he was thinking actually. He was thinking, everyone considering me as Supreme Personality of Godhead, and they are all worshipping me with the mood of what? Awe and reverence. That means with the mood of respect. They are all considering him as a Bhagavan. Oh, he is the powerful. He is powerful. He has so many opulences, and everyone is bowing down to him actually. And they are all doing what bhakti? Vaidhi bhakti. In Vaidhi bhakti, what happens? So the devotee always worship Lord with awe and reverence. ऐसा नहीं जाते खुद के भगवान के कंधों पर नहीं बैठते हैं। जो साधना वैदिक भक्ति में विधि से, जैसे शास्त्र में कहा गया, वैसा ही विधि से, नियम से भगवान की सेवा होता है वैदिक भक्ति में। अभी हम सब लोग वैदिक भक्ति करते हैं, करना चाहिए, करते नहीं, करना ही चाहिए। लेकिन भगवान को ये भक्ति से इतना मजा नहीं आता है। ये क्या है? चलिए हमको एकदम एक कुर्सी पर बिठा के बस आरती देने लगेंगे, ये अच्छा नहीं लगता। उनको क्या अच्छा लगता है? अपना भक्तों के साथ खेलना, कूदना और मजाक करना और छेड़ना, चिढ़ाना, ये सब मजा आता है एक्चुअली। तो आता है नहीं हम लोगों को भी। कोई भी रूल्स बोलेंगे तो हम लोग कैसे लगता है? एकदम दिमाग खराब मत करो। है ना, माता पिता बोलते रहते, ये मत करो बेटा, वो मत करो, ये मत करो, ऐसा बोलने लगते हैं। आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। आपको कैसा बिताने को लगता है ज्यादा? अपना फ्रेंड्स से मस्ती करना, मजा करना अच्छा लगता है या नहीं? ये प्रिंसिपल कहाँ से आया? So this material world, this principle is also a reflection of spiritual world actually. Actually कृष्णा भी वैसा ही चाहते हैं actually. कृष्णा चाहते हैं, इसीलिए इधर भी उसका रिफ्लेक्शन इधर है। ओरिजिनल वो है और ये नहीं। हम लोग लेकिन अभी रिलेटिव माइंड से हम सोचते हैं ये ओरिजिनल है और सब कुछ इसको मेन रखकर बाकी इसी के रेफरेंस में सोचने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली आपको रिवर्स सोचना है एक्चुअली। तो कृष्ण ही एक्चुअली, कृष्ण भी वैसा चाहते हैं कि उनका शुद्ध भक्ति, उसमें भी क्या है खास करके उनका जो मेलोस है, माने जो गोलोक वृंदावन में जो मेलोस होता है, जैसा सख्य भाव, माने जो सब गोपों उनके साथ खेलते हैं, सभी लोगों जंगल जाते हैं, उधर बहुत प्रकार की खेल कूद करते हैं, मजाक करते हैं और खाते हैं और मस्ती करते हैं। इस प्रकार की मस्ती चाहिए उनको। ऐसा मेलोस को वो आस्वादन करना चाहते हैं और गोपियों के साथ उनको एकदम लविंग रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा भक्ति चाहिए। लेकिन अभी सब लोगों क्या करने लगा? भगवान को एकदम एक सिंहासन पर बिठा के बस पूजा करने लगे, तो उनको अच्छा आनंद नहीं आया। एक बात भगवान ये भी बोले हैं, ब्रह्मा जी जब भगवान का जो भी है बछड़ों को और गोपों को चोरी किए थे, उस समय पर भगवान प्रत्यक्ष हुए, तब उनसे उन्होंने बहुत स्तुति की है ब्रह्मा जी।
वो स्तुति सुनते ही भगवान को कैसा लगा? भगवान तो खड़ा करके उधर खड़े हो गए हैं और ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, इतना आप ये किए हैं, आप इस दुनिया को सृष्टि किए हैं, आप पालन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब बोलने लगा। ये सभी सुन के कृष्ण को आनंद आया क्या? कुछ ही नहीं आया आनंद। ये क्या बोरिंग लगा रहे हमको, तो इतना में हम अपना मित्रों से कितना खेलते था। माने जो रागानुग भक्ति है, माने जो गोपों और गोपियां ब्रजवासियों जो भक्ति करते हैं, वो भक्ति भगवान को स्वाद माने देती है और आनंद देती है। उदाहरण यही है, ब्रह्मा जी का स्तुति सुनने के बाद अभी बस हो गया, अभी मैं जाऊं, आपका स्तुति हो गया। तुरंत भाग गए, चलिए बस हो गया, अभी आपका क्षमा कर दिए भाई, आप छोड़ दीजिए मुझे, मैं अपना दोस्तों से खेलना है। चलिए ये हालत है। और ऐसा भक्ति का प्रचार ऐसा प्रचार को देखना चाहते थे भगवान कृष्ण एक बार। इसीलिए वो क्या करे, नींद आ रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं कोई बात नहीं। तो माने कितना भी आप शास्त्र पढ़िए, उसमें कर्मकांड है, उसमें ज्ञान है, अष्टांग योग है, उसमें कई प्रकार की माने वैदिक भक्ति भी है। ये सभी सार नहीं है शास्त्र का। शास्त्र का सार क्या है? जो व्रजवासियों की जो भक्ति है ना, वो सार है। माने कृष्ण ही भगवान है, और वो कृष्ण की आनंद असली माने सबसे ऊंचा आनंद कहां से मिलता है? माने व्रजवासियों से, व्रज भक्तों से मिलता है। और वो भक्ति का प्रचार वो दिन में एक बार करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार। तो ब्रह्मा जी के एक दिन मन आप सब जानते हैं क्या है? तो 4 युग मिला के एक दिव्य युग होता है, माने सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि। ये चारों युगों को मिलाने से एक महायुग बोलते हैं, नहीं तो उसको। और ऐसे 1000 महायुग मिलकर एक दिन होते हैं, 12 घंटा होगा। और वैसे ही 1000 महायुग रात्रि होगा। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो माने एक दिन में 1000 कलयुग होता है एक्चुअली दिन में। रात में तो छोड़ दीजिए, उसमें तो कुछ नहीं करते ब्रह्मा जी, सब लोग सोते रहते हैं। अब हम लोगों को भी सुलाते हैं उसमें, क्योंकि हम स्वर्ग तक जितना भी लोग हैं उन सबका शरीर को, स्थूल देह को हटाते हैं, सभी लोगों को उन्हीं का जो कमल है ना, उस कमल में जाकर सो जाते हैं। लेकिन स्वर्ग की जो ऊपर लोक है, महरलोक और जनलोक और तपोलोक और सत्यलोक, इन लोकों में रहने वाला लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते। वो लोग भी, उन लोगों का स्थूल देह तो रहती है, और वो लोग हर वक्त तपस्या में रहते हैं। वो लोग तपस्या करे, सोए, उनका इच्छा है। लेकिन स्वर्ग तक जितना है उन सबको वाइंड अप करके सब लोगों को सुलाते हैं, और वो भी खुद सोते हैं, और सुबह उठ के अभी शुरू करते हैं। तो ऐसा 1000 माने 1000 कलयुग होता है। तो भगवान इसीलिए सोचे कि मेरा ये जो शुद्ध भक्ति है, वो भी शुद्ध भक्ति में भी क्या है, वैदिक भक्ति नहीं, खास करके क्या है, रागानुग भक्ति और रागात्मिका भक्ति। जब रागानुग भक्ति पक्को हो जाते हैं, उसी को रागात्मिका बोलते हैं। और वैसा भक्ति को उन्होंने, he wants to, हिंदी ज्यादा बोलने से समस्या नहीं है ना, कोई हिंदी नहीं जानता ऐसा तो कोई नहीं है ना, ठीक है। तो मैंने साउथ से कोई ये नहीं है ना, ठीक है। तो वैसा ये जो रागात्मिका भक्ति है, रागानुग भक्ति, इसको क्योंकि ऐसा भक्त चाहते हैं भगवान अपना धाम में और अपना साथ, और ऐसा अपॉर्चुनिटी सबको भी देना चाहते हैं। तब इसीलिए ब्रह्मा जी का एक दिन में माने 1000 कलियुगों में, माने 1000 पहले द्वापर युग की अंत में श्री कृष्ण भगवान आते हैं, और उसके बाद का जो भी कलियुग है, उसी कलियुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो माने एक दिन ब्रह्मा जी के एक दिन माने 1000 कलियुगों को बांटा गया, 14 मनुओं में बांटा गया। तो एक एक मनवंतर में तब कितना होगा, 14 में बांटेंगे तो 1000 को 72, ऑलमोस्ट ऑल 71 समथिंग। तो उस माने एक एक को 71 माने 71 महायुगों को मिला के एक मनवंतर बोलते हैं।
और ऐसा 14 मनवंतर रहता है एक दिन में, उसमें जो 7वां मनवंतर है, एग्जैक्टली मिडिल वन, वो वैवस्वत मनवंतर है। उसमें एक मनवंतर में कितना कलयुग रहेगा? 72। उसमें 28 कलयुग में वो जो है ना, वो जो शुद्ध रागात्मिका भक्ति प्रचार करना चाहते हैं, तो इसी उद्देश्य से महाप्रभु आते हैं। ये बात सभी लोगों को पता नहीं चलता एक्चुअली। किसको पता चलेगा? जो लोग भगवान की शुद्ध भक्तों की, जिनको शुद्ध भक्तों की कृपा मिलता है, वही लोग समझ सकते हैं। इसीलिए बहुत लोगों को अभी देखिए, कई संप्रदाय हैं, कई लोग हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते। तो मान ये सीक्रेट है, क्योंकि इतना मजेदार चीज देना चाहते हैं, और वो चीज को केवल वही लोग हैं जो सरल स्वभावी हैं, जो क्रूर नहीं है। क्रूर लोगों को सबको क्या अट्रैक्शन लगेगा? क्रूर लोगों को क्रूर लोगों क्या अट्रैक्ट है? नहीं, महाप्रभु नहीं। क्रूर लोगों को ये जो शंकराचार्य की फिलॉसफी है, ये सब अद्वैत है, ये सभी ये सो कॉल्ड ये फिलॉसफी जहां भगवान की रूप को नकारते हैं और भगवान की दिव्य लीलाओं को नहीं चाहते हैं, ऐसा माने क्रूर लोगों को ये सभी चीज में पसंद लगता है। लेकिन जो सरल स्वभावी है, जिनके ऊपर भगवान की शुद्ध भक्तों की कृपा हो जाती है, उन्हीं लोगों को ये महाप्रभु के अवतार के ऊपर विश्वास होता है। इसलिए कृष्ण ही भगवान है, और वही कृष्ण की प्रत्यक्ष रूप से स्वयं कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है, और कोई अंतर नहीं उसमें। अंतः कृष्णम बहिर्गौरव। अंदर से कृष्ण है, लेकिन बाहर से दिखता है गौरवर्ण में। तो आप लोग बोल सकते हैं, अरे बहुत अच्छा है, आप लोग तो अपना सिद्धांत बना रहे हैं। लोग बोलेंगे आप लोग प्योर डिवोटीज, और आप बोल रहे हैं कि प्योर डिवोटी से कृपा मिलने से और चैतन्य महाप्रभु की पर विश्वास होता है। ये सब आप लोग बना रहे हैं, ऐसा कोई बोल सकते हैं ना? ये तो आपका घर का बात हो गया। प्रमाणित तो करो, सिद्धांत रूप से, प्रामाणिक रूप से तो एस्टैब्लिश करो। अभी हम सब लोगों तो इधर आए हैं, ठीक है, लेकिन लोग तो पूछेंगे ना भाई, क्या है ओरिजिनलिटी, क्या है इस बातों में, ये तो भी पूछेंगे। ऐसे सेंटिमेंटल आप हमको मत समझाए करके कोई बोलेंगे या नहीं? आपके मन में भी कोई ना कोई कोने में एक बैठा रहता है ऐसा डोट्स पूछने वाला। तो मैंने चैतन्य महाप्रभु स्वीकार करेंगे तो हम सब अच्छा भक्त है, नहीं तो नहीं, ये क्या है, ऐसा भी कुछ लोगों को मन में झलकता है। एक्चुअली वो सही है, एक्चुअली कोई बात नहीं। तो देखो, कोई भी बात को एस्टैब्लिश करने के लिए किसके पास जाना चाहिए? शास्त्र के पास जाना है। शास्त्र माने कौन है? शास्त्र को देने वाला वेद व्यास जी। वेद व्यास जी है ना। शास्त्र को कंपाइल कौन किए हैं? कोई भी संप्रदाय है, कोई अद्वैत वाले हैं जैसे शंकराचार्य के फॉलोअर्स है, नहीं तो रामानुज है, नहीं तो निम्बार्क है, वल्लभ है, कोई भी है, मध्व है, कोई भी है, कि सब लोगों किनको मानते हैं? वेद व्यास जी को सब मानते हैं या नहीं? और उनकी जो भी है वेदों को 4 भाग विभाजन किए हैं, 4 भागों में, और उसके बाद उन्होंने पुराण, इतिहास, वेदांत सूत्र सब कुछ दिए हैं। तो इसलिए वेद व्यास प्रमाण है हम लोग को। और वेद व्यास जी तो वेदांत सूत्र भी लिखे हैं, लेकिन लिखने के बाद फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुआ। बेचारा देखिए, खुद का जो भी लेख है उससे उनको आनंद नहीं आया। लेकिन उसमें उस लीला में हमको समझ में आता है, उनको तभी खुशी हुआ जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्राकट्य किए थे। तो एक्चुअली तो है पहले से, उसको जस्ट प्रकट किए बस। तो उसके बाद उनकी दिल में बहुत आनंद आ ही गया। तो माने इससे ये एस्टैब्लिश होता है कि उन्होंने जो कहना चाहते हैं, माने वेदों को विभाजन किए हैं, महाभारत की रचना की है, वेदांत सूत्रों की रचना की है, लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली उन्होंने फुल्ली सेटिस्फाई हो गए जब श्रीमद् भागवत की प्राकट्य होने के बाद। इससे क्या से एस्टैब्लिश हो गया, माने कोई भी संप्रदाय वाले जरूर एक्सेप्ट करना है श्रीमद् भागवतम को। वेद व्यास जी का अंतिम कृति है, और अंतिम फाइनल, वो जस्ट फाइनल स्टेटमेंट है उनका श्रीमद् भागवतम।
कोई भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसकी विस्तार रूप से श्रील जीव गोस्वामी एस्टैब्लिश किए हैं, किसमें? तत्व संदर्भ में बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश किए हैं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। माने कोई भी बात को बोलने के लिए कहां से एस्टैब्लिश होना चाहिए? श्रीमद् भागवत से। एक बार श्रीमद् भागवत से कुछ बात कहा गया, माने बाकी सभी सुनना ही पड़ेगा। बाकी शास्त्रों में जो भी कहा गया उन सबको ओवररूल करने की सामर्थ्य किसके पास है? श्रीमद् भागवत क्या है? चक्रवर्ती है, द एम्परर इन प्रमाणस। द एम्परर प्रमाण इज श्रीमद् भागवतम। So that's why nobody can refuse the authority of Srimad Bhagavatam. So now we are coming to that Srimad Bhagavatam. हम लोगों का काम क्या है? आपका चैतन्य महाप्रभु सबसे माने साक्षात कृष्ण ही हैं, कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? दिखाओ। इस श्रीमद् भागवत से दिखा सकते हैं क्या? ऐसा प्रश्न कोई पूछ सकते हैं, दिखा सकते हैं या नहीं? यस, दैट मीन्स श्री वेद व्यास जी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ जो श्रीमद् भागवत है उसी में ही एस्टैब्लिश किया गया। क्या एस्टैब्लिश किया गया? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर् यजन्ति सुमेधसा। So the 11th canto is coming. In that Srimad Bhagavatam it is established that Krishna varnam tvisha akrishnam. तो कलयुग में मैंने उधर नवयोगेंद्र सो वो कलयुग में आने वाला, माने उसके पहले सभी अवतारों के बारे में बोल रहे थे। उसमें अभी कलयुग में, इस कलयुग में आने वाला अवतार के बारे में बोलने लगे। तो वो अवतार कैसा रहता है? कृष्ण वर्णम, माने जिनकी नाम में कृष्ण रहता है। कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु का पूरा नाम कृष्ण चैतन्य, माने नाम में कृष्ण ये दोनों वर्ण रहना चाहिए। और त्विषा अकृष्ण, माने शरीर कैसा रहना चाहिए? हाँ, कांति। त्विषा माने क्या है? ह्यू, कांति, बॉडीली एफल्जेंस। इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी नो अकृष्णम, दैट मीन्स नॉट नो डार्कनेस। कितना टाइम हुआ? सो कांति से ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का वर्ण है गोल्डन फॉर्म, सोने जैसा, सोने की कलर। तो उसमें और क्या है? इतना से काफी नहीं है, कोई भी कृष्ण नाम लगा के रख सकते हैं और और बॉडी से गोरा भी होता है, इसमें क्या है? तो हम भी हैं करके आप भी लिस्ट में जा सकते हैं, कॉम्पिटिशन में लाइन लगा सकते हैं, मैं भी चाहिए। लेकिन बात और भी है नेक्स्ट। कृष्णवर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांग अस्त्र पार्षद, so सांगोपांग अस्त्र पार्षद। So he has, so all his companions, that means all other, that means Nityananda Prabhu and also Sachi Mata and Jagannath Mishra. So like this all, Advaita Acharya, all these companions also coming along with him. Or otherwise you can take his body, his limbs are so beautiful. Anga means there is a lot of description is given by Krishnadas Kaviraj Goswami in Sri Chaitanya Charitamrita. And also Jiva Goswami established in detail actually. In Tattva Sandarbha, first the Mangalacharana Sloka, there you can find in Sarva Samvadini Tika in elaborately actually. There is very extensive discussion is there in establishing Chaitanya Mahaprabhu. This sloka is referring Chaitanya Mahaprabhu only. Very thoroughly he establishes. So we are just in a summary we are reading here. So next what? So Ignaihi Sankirtana Prayehi Yajanti Sumedasaha. People in this Kaliuga, they all worship him with what? With Sankirtan Yajna. That means he comes and he inaugurates Sankirtan Yajna and everyone will worship him with that Sankirtan Yajna. So who inaugurated Sankirtan Yajna? In this Chaitanya. Just having the name itself is not sufficient.
काम तो भी करके देखा नहीं, तो काम भी उधर कहा गया। तो इसलिए वो श्लोक में जो भी काम कहा गया, वो जो भी लीला कहा गया, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ही किए हैं और कोई नहीं किए। तो इसीलिए ये जो श्लोक हैं यही प्रमाण है। सो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण दोनों अलग नहीं है। तो आया क्यों आया ये चैतन्य महाप्रभु? किसके लिए आए थे? बट मेन पर्पस क्या है? हाँ, व्रज भक्ति को प्रोपगेट करने के लिए आए। एक बात तो भूल गए क्या अभी? तो कृष्ण चाहते हैं ना, कृष्ण क्या चाहते थे? उनको व्रजवासियों जैसा भक्ति करते हैं वैसा भक्ति फैलाना चाहते हैं, और दिन में एक बार आके देना चाहते हैं। तो इसीलिए तो अभी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर वो जो शुद्ध भक्ति में भी क्या है, जो रागानुग भक्ति है और रागात्मिक, जब पक्व हो जाती है रागानुभक्ति, उसी को रागात्मिका बोलते हैं, उस भक्ति को देने के लिए आए हैं। माने समस्त शास्त्रों का सार है व्रज भक्ति। व्रजवासियों की जो भी भक्ति है वही समस्त शास्त्रों का सार है, वही भगवान को सबसे अधिक आनंद देने वाला चीज है, और बाकी कुछ भी नहीं है। इतना आनंद नहीं दे सकते हैं बाकी चीज। अभी पूरा समाज कहां स्ट्रक हो गया? चैतन्य महाप्रभु की पहले पूरा कर्मकांड में स्ट्रक हो गया। माने देवताओं की उपासना करना, काली मैया का, इधर तो ज्यादा ही चलता था, अभी भी चल रहा है एक्चुअली। और नहीं तो अन्य देवताओं की उपासना करना, यज्ञ याग आदि करना। इस प्रकार पूरा दुनिया तो शुद्ध भक्ति से वंचित होकर उसका प्रचार करने वाला तो है, तो भी रामानुज इत्यादि किए हैं, तो भी उसमें वैधि माने ऑल रेवरेंस से जो भी भक्ति किया जाता है वो भक्ति ज्यादा था। लेकिन व्रजवासियों की जो भी भक्ति है उसका प्रोपगेशन इतना बढ़िया से किया नहीं गया। तो भले उसमें भी आप देख सकते हैं कुछ आंडाल कुछ तो की है, तो लेकिन जैसा मास लेवल प्रीचिंग तो नहीं हुआ उस समय तो पूर्व आचार्यों से। इसीलिए एक बार व्रज भक्ति को मास लेवल प्रचार करने के लिए कृष्ण ही साक्षात चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और उसको इतना पूरा देश में फैला दिए। यही संकीर्तन लेके तो पूरा देश को यात्रा किए हैं। और उसके बाद उस जो भी है संकीर्तन यज्ञ, उसको सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन माने शास्त्रों से निकाल के, माने व्रज भक्ति ही अल्टीमेट है। माने भगवान की अनेक रस हैं, उस रसों में ये जो व्रज भक्ति, व्रजवासी खास करके गोपियों का जो भी भक्ति है, जो माधुर्य भक्ति, माधुर्य रस, और उसका स्थापना किए हैं कौन? रूप और सनातन, रूप गोस्वामी। इसीलिए उन्होंने रचना की है। क्या है? कौन सा बुक रचना की है? उज्ज्वल नीलामणि। जो व्रज भक्ति में भी कौन सा रस उनको अधिक स्वाद देती भगवान को? माधुर्य रस, उसी को उज्ज्वल रस कहते हैं। और उसी रस का एक्चुअली एक प्रामाणिक रूप से एस्टैब्लिश करते हुए उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, और उसी ग्रंथ है उज्ज्वल नीलामणि। और ये टॉप मोस्ट बुक है, आपको लिए अभी रिकमेंडेड नहीं है लेकिन बाद में। तो ये टॉप मोस्ट बुक है, और भक्ति रस को एस्टैब्लिश किए हैं रूप गोस्वामी, और उसी को क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु। इस भक्ति रस क्या है? ओशन है, एक सागर है, उतना आनंद मिलता है उसमें, एक छोटा सा बूंद ब्रह्मानंद। माने भक्ति रस को अनेक शास्त्रों से उल्लेखन करते हुए रूप गोस्वामी तो एक सिस्टमैटिकली प्रेजेंट किए हैं। चैतन्य महाप्रभु जो उपदेश दिए हैं उन उपदेशों को एक ग्रंथ के रूप में आविष्कार किए हैं, रूप और सनातन। और रूप और सनातन को सहयोग देने के लिए, मदद करने के लिए आए हैं। और एक ग्रेट हीरो कौन है? जीव गोस्वामी। अभी आएंगे उधर। तो जीव गोस्वामी आए हैं और उन्होंने षट संदर्भ की रचना की है। और सिस्टमैटिकली जो सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु माने जो शुद्ध भक्ति चैतन्य महाप्रभु प्रचार किए हैं, अन्याभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। ये श्लोक समझना ही हमारा जीवन का मेन मकसद है। एक श्लोक समझ लिया माने आपको
सब कुछ समझ लिए। इसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे, ये तो कई घंटों चलता है ये श्लोक का एक का ही, ये तो बहुत विस्तार होता है ये तो। और ये श्लोक इसका प्रचार पहले कौन किए हैं? रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु स्वयं किए हैं। इस श्लोक का पीछे जो भी है सिद्धांत तो कौन समझाया? रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु। वो कौन है? साक्षात कृष्ण। कृष्ण ही आकर उनको वो शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन है, अन्याभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। बहुत माने पावरफुल श्लोक है पूरा, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भले अभी आधा नींद में है आप लोग, तो मुझे पता है, लेकिन मैं इतना तो बोलता हूँ कि एक बात याद रखिए इस क्लास से, मैं जीवन में जरूर इस श्लोक को गहराई से समझना चाहता हूँ। ये एक पॉइंट रजिस्टर करिए अपना दिमाग में, बस वो अभी ना हो जाएगा लेकिन कभी भी तो होना चाहिए, इतना तो रजिस्टर करके रखिए। इस क्लास से आपको यही पॉइंट मैं टेक इट फॉरवर्ड, एक्चुअली मैं कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहा हूँ, इसको लेके जाना है ये पॉइंट को। ये श्लोक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एसेंस है समस्त शास्त्रों का, और इसी को ही भागवत में दोहराया गया। हर कन्वर्सेशन में इसी श्लोक का अर्थ जो है वही कई श्लोकों में कई रूपों में बोला गया, लेकिन तो सार तो वही है। हर कन्वर्सेशन इधर रूप और सूत और सौनकादि ऋषि, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, ब्रह्मा जी, नारद, विदुर और मैत्री, जितना भी कन्वर्सेशन देखेंगे सभी का डिस्कशन इसी श्लोक की अर्थ पर घूमता रहता है। इसीलिए ये श्लोक समझना मैंने पूरा भागवत समझ। भागवत ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु कोई भेद नहीं, यही असली टीचिंग्स हैं एक्चुअली, चैतन्य महाप्रभु देकर गए हैं। उसके पहले ये भक्ति शुद्ध भक्ति का कोई प्रमोट नहीं कर पाए, भले आचार्य का भी नहीं। ये शुद्ध भक्ति का प्रमोशन चैतन्य महाप्रभु किए हैं। और इसमें इस शुद्ध भक्ति में सबसे मेन अंग क्या है? संकीर्तन यज्ञ, श्रवण कीर्तन आदि रूपा भक्ति 24 घंटा भगवान की आनंद के लिए, खुशी के लिए, और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं, खुशी के लिए ये करना। ऐसा करने से क्या आएगा? गोपियों की जैसा भक्ति है वैसा भक्ति आ जाएगा। तो इसीलिए ये इसका विचार हम लोग बाद में करेंगे, जैसा आपको ग्लिम्स बोल रहा हूं। तो इसीलिए महाप्रभु का जो भी शिष्य है तो उनको एक पुस्तक दिए हैं, उस जो भी सिद्धांत उन्होंने पढ़ाए हैं उसका पुस्तक दिए हैं, और उसी पुस्तकों के आधार पर हमारा श्रीला प्रभुपाद जी व्याख्या किए हैं भागवत के ऊपर, और उसी को प्रचार करने के लिए हम सब हैं। You should understand the importance of this mission. इसकी पीछे रीजन क्या है? साक्षात तो कृष्ण भगवान इस दुनिया को क्या देना चाहते थे? व्रज भक्ति। और इसीलिए उन्होंने क्या रूप में आए हैं? चैतन्य महाप्रभु। और उसे महाप्रभु क्या किए? ये पूरा शुद्ध भक्ति को, ये व्रज भक्ति को क्या किए? सिखाए। किनको? अपना शिष्य। रूप सनातन और सनातन के द्वारा जीव गोस्वामी को आया, तो इस प्रकार सिखाएगा। और उसी के इसीलिए वो लोग किताब लिखे हैं, और उन किताबों की आधार से श्रील प्रभुपाद जी अपना भगवत गीता पर व्याख्या की। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? महाप्रभु का हम सब एक सर्वेंट बनकर उन किताबों को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। यही संकीर्तन मूवमेंट है, ये पहले मूवमेंट। आप इधर कनेक्ट हो जाइए, कहां से शुरू किया वहां पहले मूवमेंट है ना, संकीर्तन मूवमेंट। संकीर्तन मूवमेंट माने नाम का प्रचार करना, उसके साथ साथ पुस्तक भी वितरण करना, और फिलॉसफी को उसको समझाना चाहिए। अभी दुनिया किससे फंसा हुआ है? कर्मकांड, कर्म करते हैं। कर्मकांड भी नहीं है, अभी केवल कर्म करो, कुछ ना कुछ कर्म करो, वो विकर्म हो कुकर्म हो जो भी है, कर्म करो, पैसा कमाओ, पैसा कमाने के बाद उस पैसा से मजा लो। कोई रेगुलेशन नहीं, पैसा कमाने की कोई रेगुलेशन नहीं, इसलिए धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। और वो जो भी धन कमाते उस धन में शुद्ध धन अशुद्ध धन ऐसा भी नहीं है, और जो भी उस धन से सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उसका भी कोई रेगुलेशन नहीं है। माने धर्म अर्थ काम जो से शास्त्र में कहा वैसा भी आजकल लोग नहीं कर रहे। एक्चुअली धर्म अर्थ काम शास्त्र के अनुसार भी नहीं कर रहे लोग।
धर्म अर्थ काम की इंपॉर्टेंस देकर शास्त्र के अनुसार इनको जो फॉलो करेंगे उनको बोलते कर्मी। एक्चुअली अभी का लोग कर्मी है क्या? कर्मी भी नहीं है, एक्चुअली कर्मी से भी गुजरा हुआ है, नीचे गिरा हुआ लोग है, विकर्मी कुकर्मी है। इतना घटिया ऐसा लोगों को अभी हम लोग कहां ले चलना है? ब्रजवती का ले जाए। लेकिन इस कलयुग का एक महत्वता भी है, ये है कि कलयुग में, क्योंकि ये लोग बहुत सिंपल हैं, क्योंकि पहले के तो कर्मकांड को जो मानते हैं उस व्यक्ति को भक्ति समझाना बहुत मुश्किल होता था। अभी तो ये लोग कर्मकांड से नीचे गिर गया। तो एकदम प्लेन स्लेट है, जो लिखना है लिख डालो। तो ये है एक्चुअली, इसके पहले तो इसके मुश्किल होता था एक्चुअली, दूसरे युगों में बहुत मुश्किल है इस शुद्ध भक्ति को प्रचार करना। अभी शुद्ध भक्ति प्रचार करना बहुत आसान है। तो जहां भी जाओ पुस्तक ले जाओ प्रभुपाद जी का और हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, बस तुरंत अट्रैक्शन हो जाएगा लोग। ये इस टाइम का पावर है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु रिसेंटली आए ना, 500 साल ही हुआ। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते, माने 1000 कलयुग में एक बार ही आते हैं, वो भी उसमें जब आए थे वो उन्हीं के पास में हम लोग अभी, ऐसा नहीं कई हजारों साल हो गए। तो इसीलिए ये पूरा वायुमंडल किससे पूरा भरा हुआ है? किससे सच्चार्ज है? महाप्रभु की मर्जी से। इसीलिए उधर थोड़ा सा भी आप एंड्योर करेंगे तुरंत भक्त बन जाते हैं। इसीलिए ये वायुमंडल पूरा महाप्रभु से भरा हुआ है मर्जी से। तो इसीलिए हम लोग कितना भाग्यवान हैं। बाप रे बाप, एक बार आते हैं एक दिन में, और माने 1000 कलयुगों में, और उसमें भी हम लोग तो महाप्रभु की ऐसा आने के बावजूद भी कितना लोगों को जानकारी है? बहुत कम लोगों को। और उसमें भी हम लोग लकीली हम लोगों को पता भी चला, और जहां से ये शुरू हुआ महाप्रभु का जन्म हुआ वहां भी आ गए आप लोग। केवल हमारा प्रभुपाद जी का कृपा है। तो श्रील प्रभुपाद की इसलिए ये याद रखना है भाई, कितना मूल्यवान चीज आपको मिला, इसको कभी भी नहीं भूलना है। भले दोस्त लोगों आपको कोई भी कुछ खिलाया पिलाया, नहीं तो कुछ गिफ्ट दिया, इसको बहुत याद रखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा याद रखना चाहिए इसको। चाहिए जो भी आपको प्रचार किए हैं उन लोगों को भी आप आभारी। You should be grateful to your all preachers, all your teachers, and don't commit any offense. इतना अनोखा चीज, रेयर चीज मिला आपको, शुद्ध भक्ति को जानने की मौका, लेकिन ये हाथ से गिर जाएगा। कब गिर जाएगा पता है? जिस दिन आप अपना जो भी है साथ में रहने वाले वैष्णव जो भी तो प्रयास कर रहे हैं वो लोग भी, लेकिन उनका निंदा करेगा, सब छीना जाएगा आपसे, इतना दूर ढकेल दिया जाएगा, लात मार के बहुत दूर गिरा जाएगा। डोंट डू सच अ मिस्टेक, बी केयरफुल, डोंट कीप ऑन जजिंग द डिवोटीज अननेसेसरी। जहां जरूरी नहीं उसमें घुस के बहुत मजा लेने की, ये क्योंकि हम लोगों को कई जन्मों से यही काम करके आते हैं ना हम लोग। दूसरों के काम में उंगली लगाना, उसकी विमर्शा करना, उनकी ये करना वो करना, सब करते हैं ना। वही सब भक्ति से भी, भक्तों से करने से क्या होगा? आपका हृदय सूख जाएगा एक्चुअली, पूरा की पूरा उसमें ड्राइनेस आता है। माने अभी महाप्रभु के बारे में जानते ही एकदम रोमांचित होने लगता है हम लोगों को, जिस हृदय में कोई भी कल्मश नहीं। लेकिन जब वो भक्तों के प्रति कल्मश है आपके हृदय में, जब भक्तों के प्रति निंदा भाव है, भक्ति के प्रति, गुरु के प्रति यदि निंदा भाव है आपके हृदय में, तब उस हृदय में जैसा जो रेस्पॉन्स आना चाहिए वैसा नहीं आएगा। वो सूखा हुआ हृदय, वो जला हुआ हृदय, वो पत्थर जैसा बना हुआ हृदय। तो वैसा मत बनाओ, जितना आप निंदा करते जाएंगे उतना हृदय पत्थर हो जाएगा, तब कोई रस नहीं बचा रहेगा। क्योंकि भक्ति महारानी हटाओ इस गधे को, इसको कोई आनंद नहीं देना। जा
इसी संसार में और भी मजा लो, जाओ सुख का मजा जो लेना है ले लो, जितना लेना, धन मिलेगा, लड़की मिलेगा, क्या फायदा इससे, कुछ भी नहीं। कितना भी मजा ले लो फिर भी अरे ये तो आनंद नहीं दे रहा है ना। पैसा से कोई खुशी होता है, गर्लफ्रेंड बदलने से खुशी होता है, कुछ ही नहीं। दिमाग चाटती है और बोलती है ना, दिमाग खराब कर देती है। कोई भी खुश है क्या लड़की से? कोई खुश नहीं है, कभी भी नहीं हो सकते। यही बोल रहा हूँ मैं, सत्य है। तो इसीलिए असली आनंद इसी में। तो चैतन्य महाप्रभु जो बांटना, कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु जो बांटना चाहते हैं, जो शुद्ध भक्ति, उसी में असली रस है, असली स्वाद है। लेकिन उसको अभी हल्का, आपको अभी क्यों है ना, अभी तो समस्या है कि वो टेस्ट अभी भी तक नहीं मिला, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं जरूर वो बहुत टेस्टी चीज है। विश्वास रखकर यदि एकदम आस्ते आस्ते एकदम अच्छा से कोई भी गलती ना करते हुए भक्ति मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जरूर मिल जाएगा। कोई भी गलती नहीं करना चाहिए, प्रोसेस को सिस्टमैटिकली एक हम्बल मूड में रहकर यदि फॉलो करेंगे तो जरूर आप सबको मिल जाएगा, निश्चित है। ये प्रॉपर्टी और आचार्य की गारंटी है। लेकिन इधर उधर देखेंगे तो कुछ निंदा करेंगे, इधर उधर की ऑटोमेटिकली आसक्ति बढ़ जाएगा, भौतिक आसक्ति बढ़ेगा अपराध करने से। वैष्णवों का, भक्तों का, भक्ति का, गुरु का अपराध करने से, साधुओं का अपराध करने से क्या होगा? आसक्ति बढ़ेगा, भौतिक आसक्ति। जिसको छोड़ के आया उसको और दोबारा पाने की इच्छा होने लगेगी। इसीलिए बी केयरफुल, बिवेयर। ये संकीर्तन मोमेंट है। तो इसके बाद शिला प्रभुपाद जी, उनका जो भी है 4 मूवमेंट है ना, तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु का ग्लोरीज को पूरा हम लोगों का कर्तव्य है बांटना। इसलिए जितना हो सके उतना पुस्तक वितरण करना चाहिए। उसकी पीछे ये फीलिंग होना चाहिए आपको, आप क्या बांट रहे ये आइडिया होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि पुस्तक बेचेंगे नहीं तो पैसा आएगा, नहीं तो उससे ये होगा नाम आएगा, नहीं तो पॉइंट्स मिलेगा। ये तो ठीक है, वो तो एक्सटर्नल रीजंस हैं, लेकिन इंटरनल रीजन क्या है, आप क्या बांट रहे ये तो याद रखो। क्योंकि हर पुस्तक का कंक्लूजन यही है, शुद्ध भक्ति को देना, और वो कितना महत्वपूर्ण है आप जानो। तो उसको बांट रहे आप, उसको बांटने के लिए आप एक माध्यम बन रहे हैं। प्रभुपाद चाहते हैं और उनकी कृपा को आप इस किताबों के रूप में आप एक पोस्टमैन की जैसा ढो के ले चल रहे हैं। एक्चुअली आप कृपा नहीं दे रहे, आप कृपा को ले चल रहे, बस कैरियर है। ऐसा मत फील, इसीलिए स्वामित्व भाव को जल्दी आ जाते हैं, मैं भक्त बना दिया, मैं हूं मैं, ये भी बहुत समस्या है। इधर से अभी शुरू होगा समस्या। मैं जस्ट पूर्व आचार्यों का कैरियर हूं, बस मैं नहीं हूं, मैं कौन हूं चाहिए, ऐसा फीलिंग होना चाहिए। तो इस प्रकार मैंने एक पुस्तक वितरण के पीछे और नाम संकीर्तन के पीछे आपको सही मूड एंड मिशन होना चाहिए। प्रभुपाद चाहते हैं ये संकीर्तन, इसीलिए उन्होंने चाहते पहले जहां तहां सब जगह भगवान की नाम कीर्तन करे और पुस्तक वितरण करे। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट मूवमेंट है टेम्पल वर्शिप मूवमेंट। उन लोगों को एक सिस्टमैटिक माने शिष्टाचार सिखाना चाहिए उन लोगों को। किताब पढ़ के अपने आप शिष्टाचारी नहीं बन सकते। भगवान को किस प्रकार से सेवा करना चाहिए, क्या सूची है, क्या मुची है, सेवा क्या होता है, कैसा करना चाहिए, क्या भाव से करना है, एक सिस्टमैटिक कल्चर सिखाने के लिए, भक्ति कल्चर को सिखाने के लिए क्या चाहते थे प्रभुपाद? सेकंड मूवमेंट क्या है? टेम्पल वर्शिप मूवमेंट। इसीलिए उन्होंने टेम्पल्स बनाना शुरू किए। टेम्पल का एक टेम्पल इधर प्रभुपाद जी लिखते हैं वल्लभ भाई पटेल को, उसमें दिस इज इन द रियल सेंस द theistic cultural movement. टेम्पल वर्शिप मूवमेंट माने कल्चरल मूवमेंट एक्चुअली। And the facility or opportunity shall be open to everyone whatsoever he may be. माने पहले भक्तों माने मंदिर का उद्देश्य क्या है? मंदिर की जैसे लोगों क्या सोचते थे, मंदिर जाने माने भगवान का दर्शन करेंगे, हमको जो चाहिए शरीर के लिए मजा लेने के लिए, जो बचा हुआ मिला नहीं है उन सबको जाके मांगेंगे और
बस उनकी रिटर्न में हम ये दे दूंगा आपको और हमको ये दे दो, बस। ये भक्ति है क्या? ये भक्ति नहीं। महाप्रभु इसको रिजेक्ट कर दिए। ऐसा भक्ति होता है? अन्याभिलाषिता शून्य। इसीलिए उन्होंने पहले शब्द क्या रखे हैं? अन्याभिलाषिता शून्य। कोई भी कुछ भी नहीं मांगना है, ऐसा बिना मांग के देना ही यही भक्ति होता है। तो सब लोग यही चाहते हैं ना, एकदम मुझे कोई अपेक्षा ना रहकर मेरे से प्रेम करने वाला चाहिए करके सोचते हैं, लेकिन वो भौतिक जगत में कहीं नहीं मिल सकता है। वो केवल भगवान और भगवान की भक्तों से ही मिलेगा। तो इसीलिए आपको इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते हैं कि एक शिष्टाचार सिखाना चाहिए इन लोगों को, एक सिस्टमैटिकली, माने इनको एक भगवान की सेवा कैसा करना है, ये सभी सिखाने के लिए उन्होंने टेम्पल्स शुरू किए। ये टेम्पल्स का उद्देश्य नहीं है कि भगवान को जो चाहिए भगवान से आपको मांगने की एक बिजनेस डील रखने की जगह नहीं है, ये है सीखने के लिए जगह है। There are thousands and lakhs of temples all over the India, but they are not always properly managed. Some of them have become the positive dens for undesirable activities, and most of the owners and trustees of such temples don't know how to utilize these sacred buildings. गांव में भी टेम्पल्स में क्या करते हैं पता है ना? बैठ के जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं। बस ऐसे दोपहर में जाते हैं सभी लोगों, काम करना, अभी धूप है तो टेम्पल के छाया में बैठते हैं उधर नीचे वरांडा में और जुआ खेलते हैं, नहीं तो मूवीज देखते हैं, नहीं तो जो भी है गप्पू मारते हैं, यही करते हैं। और एक दो साल में एक बार कोई भी एक ये होता है ना, ये उत्सव होता है, तो एक बार साल में एक बार कुछ होता है मेला। बस इतना है, भगवान को बंद रखते हैं। कोई इसका मैंने भगवान कौन है, भगवान की सेवा कितना महत्व है, कैसा करना है, ये सिखाते हैं क्या? नहीं। प्रभुपाद जी देश में ये सभी जो एग्जिस्टिंग टेम्पल्स को देखकर उनका हृदय खिन्न हो गया एक्चुअली। तो वो पटेल को क्यों लेटर लिखा पता है? पटेल को बोल रहे कि अब तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो चाहते थे प्रभुपाद जी ये सभी टेम्पल्स को हम लोगों को दे दीजिए। प्रभुपाद जी का प्लान देखिए, सब टेम्पल्स हम लोगों को दे दीजिए, हम सही तरीका से यूज करेंगे इसको, हम सही से ऑर्गेनाइज करूंगा मैं। ये था इनका, मैंने इतना बढ़िया प्लान है। तो लेकिन बात तो सुने नहीं, तो पटेल जी सुने नहीं, उसके बाद इंदिरा नहीं सुनी, कोई नहीं सुनी, चलो हट करके वो खुद स्टार्ट किए टेम्पल्स। तो क्योंकि हमारे इस्कॉन टेम्पल्स माने एक रिचुअल टाइप नहीं है, ऐसे जाकर उधर कुछ रिचुअल्स करेंगे चले जाएंगे, उधर कथा होता है, उधर लोगों को समझाया जाता है भगवान कौन है, सामने जो खड़े हुए हैं ये भगवान कौन है, ये सभी समझाया जाता है। इसीलिए अभी देखिए कुंभ मेला में भी देखिए, जितना हम लोगों की टेंट में है उतना लोग कहीं भी नहीं है, जितना युवा हम लोगों से जुड़ते हैं उतना कहीं से नहीं जुड़ते, क्योंकि जो भगवान का असली प्लान है उसको हम लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं। इसलिए भगवान खुश हैं एक्चुअली। इस मूवमेंट में आप सब पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, कंप्लीटली सभी सैफ्रान होना चाहिए। इस चैतन्य महाप्रभु का मिशन को आगे ले चलना है, और बाकी क्या टाइम वेस्ट है ना भाई, क्या करना है, क्या बचा है, सच में बोल रहा हूँ। व्हाट इज देयर इन दैट? इससे आगे क्या है? साक्षात भगवान आके मिशन स्टार्ट किए हैं और उसको आगे ले चलना है या नहीं? That's a mission. We are already in the missionaries. We are not just like a devotees. We are missionaries, missionary devotees. That is the spirit actually. Just to spread the glory of Chaitanya Mahaprabhu everywhere. You are also fortunate. You are all now got the mercy of Mahaprabhu actually. Yes. But because the proof is, he invited all of you here. You remember the mercy of Mahaprabhu and spread it. So Prabhupada ऐसा temples next उनका phase है, second phase, that means second movement is temple worship movement. It's very very important. We want temples, and also so Maharaj, so Gopal Krishna Maharaj also, so many temples he built and he gave this opportunity to everyone. And Maharaj distributed so many thousands and lakhs of books. Yes? That is a spirit actually.
So, like that, Prabhupada disciples, other Maharajas, and here Jayapatak Maharaj, and also so many Maharajas, they gave their life for spreading this mission to assist this Srila Prabhupada. And Prabhupada is desiring to assist his gurus, Bhakti Siddhanta. Same thing actually. You can see same thing when Bhaktivinoda Thakur wrote a letter to Bhakti Siddhanta, you can see there also. Bhaktivinoda Thakur is saying in that letter, in 1910, there is a letter was written actually by Bhaktivinoda Thakur to Bhakti Siddhanta. He was saying these books, Srimad Bhagavatam and so Shat Sandarbhas, all these books has to be taught and you should start an institute in Mayapur. And that's right. Bhakti Siddhanta started Bhakti Vidyananda Institute. You can see in the near the petrol bunk there is a Bhakti Vidyananda Institute is there. But anyway, it is not in a proper shape. It made a school actually. They made it a school because we are not sincere actually. So try to understand our Acharya's mode. Everyone in the one mode actually. Only the one mode is spreading the pure devotional service, Vraja Bhakti. So then after that, third movement is the Harijana movement. Prabhu, what is our time? We should start what? Okay, so just I'll quickly cover the remaining two movements and after that maybe some 2-3 minutes questions. I couldn't give time for questions, I'm sorry, one way ago it happened. So, third one is Harijan movement. So, previously Harijans means what? What is Gandhi concept? You all know Harijan? Whoever is in the lower caste, then he is Harijan. Untouchables are all Harijans, he is just saying. Actually, his movement, his approach is not scientific. We are not appreciating or we are not blaming him, but that is not scientific approach. Just calling if you are poor person, you took birth in poor family, then you are Harijan. Harijan means what? Hari ka jan, man Hari ka आदमी. तो ऐसा होता है कि गरीब लोग सब हरि का आदमी होता है. गरीब का लोग भी बहुत सिंपल भी है और धनी लोग भी बहुत लोगों अच्छे भी है, भगवान के भक्त भी हैं. तो ऐसा नहीं कि एक जस्ट संपत्ति नहीं तो आप नेग्लेक्टेड है तो आप हरिजन हो गए. ये कॉन्सेप्ट सही है क्या? नहीं. जो सच में हरि का महत्व समझते हैं, हरि का भक्ति को समझते हैं और हरि का भक्ति करना चाहते हैं, उन्हीं को हरिजन बोला जाता है. हम सब हरिजन बनने के प्रयास कर रहे हैं. प्रभुपाद इसीलिए हरिजन बनाना चाहते हैं, माने इनिशिएशन. तो इसीलिए थर्ड मूवमेंट इज हरिजन मूवमेंट. प्रभुपाद इज राइटिंग इन दैट लेटर. The third item is to take up the Harijan movement. बोल रहे कि पटेल जी को, अरे भाई ये जो गांधी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो उनका भाव क्या पता नहीं, लेकिन तो साइंटिफिक तो नहीं है, ये शास्त्रिक नहीं है ये. तो इसीलिए हम दे रहे हैं शास्त्रिक डेफिनेशन. इसीलिए हम लोगों संकीर्तन मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे. टेम्पल्स बना के टेम्पल्स में उन लोगों को ले आएंगे, बनाएंगे नहीं तो एग्जिस्टिंग वाले को लेकर टेक ओवर करके उधर हम उन लोगों को हरि का भक्त कैसा रहना चाहिए, उनकी सेवा कैसा करना चाहिए, वो सब सिखाएंगे. तभी जाकर हम लोगों इनिशिएशन देंगे. इसीलिए थर्ड मूवमेंट को हरिजन मूवमेंट लेते तो क्या बोलेंगे? इनिशिएशन मूवमेंट बोलेंगे. इनिशिएशन माने अभी आप भगवान की सदा जीवन भर भक्ति करने के लिए मैं रहूंगा, भक्ति करूंगा करके शपथ करना, इसी को बोलते हैं इनिशिएशन. और कुछ नहीं, तो बिगिनिंग है. इनिशिएशन से शो बिगिन होता है, भक्ति शो एंड नहीं. बहुत लोग इनिशिएशन लेते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं. ये सही नहीं है. चलिए, इनिशिएशन से इनिशिएट होना माने बिगिन होना, बिगिनिंग है. तो इनिशिएशन तो लेना ही है. इनिशिएशन लेने के लिए आपको पहले मंदिर में सेवा करना चाहिए, सीखना है ना. बिना सीख के आजकल बस ऑनलाइन में ऐसे ही बस ये थोड़ा मोड़ा क्लासेस सुनते हैं और भक्त बन जा रहे हैं, इनिशिएशन हो रहा है. नहीं है एक्चुअली. मंदिर से जो नहीं जुड़ेंगे और सेवा, सेकंड मूवमेंट को फॉलो करना है. टेम्पल वर्शिप, टेम्पल की सेवा करके सब सीखेंगे, उसी को हरिजन दीक्षा देना चाहिए. हरिनाम दीक्षा, वही हरिजन. वो तो हो गया, कोरोना हो गया, जूम क्लासेस हो गया, अभी भी उसी का चक्कर में.
इससे क्या होगा, वर्चुअल इनिशिएशन भी होने लगा। इससे क्या होता है कि, लेकिन आप लोगों जो भी प्रचार ऑनलाइन में करिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन उन सबको मंदिर से जुड़ना पड़ेगा, मंदिर में सेवा सीखना ही पड़ेगा। Everyone should follow how to serve the Lord. That is the Prabhupada's system actually. संकीर्तन, टेम्पल वर्शिप, तब जाकर इनिशिएशन। सेवा करना ही नहीं आता, हरिजन कैसा बनेंगे? तो इसलिए सेवा कैसा करना है, उसके बाद इनिशिएशन दिया जाता है हरिजन मूवमेंट। इससे भक्ति जस्ट शुरू होने की, माने हम कम से कम दिन में 2 घंटा टाइम देंगे। 16 माला जप करना माने 2 घंटा हम टाइम देंगे और कुछ शास्त्र अध्ययन करेंगे। लेकिन रूप गोस्वामी का जो डेफिनेशन है, अन्याभिलाष शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम, जो शुद्ध भक्ति है, उसके लिए आपको कितना घंटा डायरेक्ट भक्ति करना है? 24/7 करना है। तो माने अभी ये जो इनिशिएशन लिया हुआ व्यक्तियों को कहां तक ले चलना है? 24 आवर्स भक्ति करके, मैंने पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत होकर उनका सदा साक्षात भक्ति करने तक ले चलना है। तो इसीलिए अब इनिशिएशन देकर उनको ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? ये सब पौधा लगाया और पौधा लगाने के बाद उसके बाद एक दिन पानी दिए पहले दिन और उसके बाद छोड़ दिए तो क्या होगा? उस दिन में उसे पानी जब तक है थोड़ा सा रहेगा हरा भरा, उसके बाद सूख के खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, जो लोग इनिशिएशन ले चुके हैं उन सबको हम लोग एक कम्युनिटी रूप में बनाना चाहिए। माने अभक्तों के पास उनको नहीं रखना। अभक्तों के पास रखेंगे तो क्या होगा? वो अपना काम की, मैंने अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए पैसा कमाना चाहता है, इसीलिए उस कंपनी का गोल है इतना रेवेन्यू लाना है, उसके लिए दिन रात इनको कटवा देंगे, उनको मेहनत करा देंगे, है ना? उनका हिंदी एक्चुअली तो बनारस का है ना, तो इसे रहता है, उधर ही सीखा थोड़ा दिल्ली की तरफ रहते तो थोड़ा स्मार्ट हिंदी आता था, लेकिन उधर का वो भोजपुरी वो सब मिक्स होकर ऐसे खिचड़ी हो गए। तो क्या है कि बात उधर उन लोगों को हम अभक्तों की संगति से हटाना है। इसलिए बोल रहे अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यंच षड्भिर भक्तिर निश्चिति। माने बाहर लोगों की संगति में हमारा भक्त रहेगा जिसको प्रेम, मैंने चैतन्य महाप्रभु जो बांटे हैं शुद्ध भक्ति और व्रज भक्ति और कृष्ण की प्रेम वो पाना चाहते तो उनको 24 घंटा भक्ति में रहना चाहिए, साक्षात भक्ति उतना तक लेना है, पूर्ण शरणागत भक्त करना है। तब तो वो व्यक्ति ये लोगों के बीच पास में रहेगा तो वो लोग पूरा के पूरा अपने लिए यूज करेंगे, अपना भौतिक प्रयोजनों के लिए पूरा के पूरा दिन भर उसी अपना कंपनी का काम देंगे और ये डेडलाइन है वो डेडलाइन है ये है वो है बोल के बस उन्हीं को उसी में रमण करा देंगे। इनका समय भी चलेगा, 16 माला भी नहीं हो पा रहे प्रभु ये बोले लेंगे, 24 घंटा का बात तो छोड़ दो, 16 भी नहीं हो रहे, 2 घंटा से भी वो स्ट्रगल होते। इसीलिए क्या करना चाहिए, फोर्थ मूवमेंट क्या हो गया, सभी भक्तों को कम्युनिटी बनाना, इसी को बोलते हैं दैव वर्णाश्रम, जहां सभी भक्त ही भक्त माने शुद्ध भक्ति पाने के स्पिरिट वाले रहेंगे और वो लोग अपना जो भी चाहिए अन्न उगाएंगे और अपना गाय रखेंगे और अपना खेती करके, तो मैंने इससे बाहर लोगों के समाज से कोई प्रमेय नहीं है। नहीं तो वो लोग क्या करेंगे, तो जन्माष्टमी के दिन भी बोलेंगे आप भी आना ही पड़ेगा, है ना? तो ऐसा होता ही नहीं ये डेडलाइन वो डेडलाइन, उनको तो क्या मतलब है गौरव पूर्णिमा से, कंपनी वाले का मतलब है क्या? कुछ भी मतलब नहीं। वो बोलेंगे बस हमारे पास वो ज्यादा तो क्रिसमस को देंगे उनका जो रिलीजन वही अनुसार देंगे, लेकिन आपकी अनुसार आपकी भक्ति के अनुसार थोड़ी वो अपना हॉलिडे एडजस्ट करेंगे। लेकिन जब हमारा कम्युनिटी होता है तो तब हम क्या करेंगे, अपना हिसाब से हम सब हॉलिडे रखेंगे, नहीं तो कुछ भी रखेंगे। ऐसा समाज चाहिए, इसी को प्रभुपाद का लास्ट मोमेंट है। ठीक है, अभी 9:15 हो गए हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की चैतन्य महाप्रभु की मायापुर धाम की जय, गौर प्रेमानंद। Questions, sir? 5 minutes questions. Yes,
हरे कृष्ण very thank you so much Prabhuji for your wonderful deep lecture. Prabhuji मेरे छोटे छोटे 2 प्रश्न हैं. तो जैसे दो एक पूछिए जाए उसके बाद दूसरे एक एक तो प्रभु जैसे आप बता रहे थे कि आज जो बाकी संप्रदाय हैं वहाँ पे भी जैसे 4 संप्रदाय प्रमाणिक है, पद्म पुराण में भी आता है. Yes. तो प्रभु जी जैसे बाकी संप्रदाय अधिकतर लोग जानते नहीं महाप्रभु के बारे में, एक्सेप्ट भी नहीं करते. Yes. बट कई उनमें से भी कई लोग सरल होते हैं एंड डिवोटी को कृपा मिलती है बातों को. यस यस बट अगर महाप्रभु ही कलयुग में एकमात्र उपाय हैं, बट फिर 4 परंपरा का फिर क्यों मेंशन आता है? एक ही परंपरा होनी चाहिए थी महाप्रभु की. क्योंकि वैराइटीनेस चाहिए ना. मैंने बाकी जो भी है वैकुंठ जाने के लिए भी इच्छा वाले भी कुछ लोग आएंगे कलयुग में, उन लोगों के लिए फैसिलिटेट करेंगे. जैसे द्वारका में भी जाना चाहते हैं, इसलिए वैसा लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो हर वक्त ऑप्शन सबके लिए रहता है, लेकिन प्रमोशन तो एक का होता है. यही प्रमोशन ज्यादा एक का होता है, लेकिन ऑप्शन सभी रहता है. अभी द्वापर युग में भी हरिनाम भी रहता है, डेटी वर्शिप भी रहता है, यज्ञ भी रहता है, लेकिन प्रमोशन होता है डेटी वर्शिप का. और आप त्रेता युग में जाएंगे तो यज्ञ का प्रमोशन होता है, लेकिन बाकी सब भी हैं. ऐसा ही इधर भी बाकी संप्रदाय भी रहता है, लेकिन प्रमोशन एक का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस ब्रो. जी आपने हरे कृष्ण प्रणाम. जी आपने ये भक्ति के बारे में बताया था, रावण का भक्ति. Yes, yes. और फिर जब उसका टॉप मोस्ट लेवल होता है वो राग. हाँ, ये जब राइप हो जाएगा, रागांग माने साधना भक्ति. जब साधना भक्ति पक्का हो जाएगा उसी को रागात्मिका बोलते हैं. तो रागात्मिका भक्ति में प्रभु जी क्या जैसे भक्तों के प्रकार होते हैं, ऐसे लेवल्स होते हैं, तो क्या उत्तम लेवल के लिए ही उस लेवल पे आता है ये? नहीं, जो प्रेम भक्ति है उसी को ही रागात्मिका भक्ति बोलते हैं. रागानुभक्तों भक्ति करने साधन, रागानुभक्ति को साधना भक्ति में 2 प्रकार का होता है, वैदिक साधना, रागानु साधना. तो हम लोग इनिशियली वैदिक साधना से तो धीरे धीरे रुचि स्टेज आने के बाद रागानु साधना में चले जाते हैं. रागानु साधना भक्ति करने से क्या होगा? रागानु साधना भक्ति करने से भाव भक्ति आता है. माने भाव भक्ति वैदिक साधना कंटिन्यू करेंगे तो भी आता है, और रागानु साधना भक्ति में आकर करेंगे तो भी आता है भाव. तो वो दोनों भाव अलग अलग भाव है. तो जो ज्यादा टेस्टी कौन है? रागानु साधना भक्ति से जो भाव आया उसी का वही ज्यादा टेस्टी है. और वो भक्ति जब पक्का हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं प्रेम भक्ति, और उसी को बोलते हैं रागात्मिका भक्ति. और कोई प्रश्न? यस. हरे कृष्ण. How we can get determination like you? Association. So that's why we should keep on associating the various devotees, and you can, as much as just how we can get the like in the middle world also same principle. If someone wants to become a cricketer, then he has to associate with the people who are practicing and who are doing regularly, and also hearing about them and studying and interacting like that. So just the only thing is association only will build everything. It's a core actually. Association is the core principle actually. Wherever you in whatever difficulty you are facing in your devotional service, only thing is association. That's why your leaders all are bringing here and making associate the various devotees. This is will definitely boost you like this. So it will increase the determination. It's very scientific. That's why whenever there is a opportunity to meet the various devotees, so you should take that opportunity and also associate them. Here also, so please associate various Maharajas and whom. So you know, next plan for them, and then your determination. You can see so how they are. Just their words also. They may not say how they are serving, but their words itself will reflect you, and your determination will be increased. Okay. So, okay. Yes. Go. कुछ जैसा आपने मेंशन किया there are 4 principles. Yeah. So this matter of 4 time, movements. the 4 principles हुआ. First is synchronized. Yeah. 4 movements. Four movements. So ये जो 4 movements हैं time इस पर भी डिपेंड करते हैं. कि कई बार देते हैं किसी प्लेस में when we can apply 4 movements, but sometimes जैसे in city area maybe we have this concept, but right now it's not possible. So ऐसा Yeah, we have to have complete picture. So Prabhupada wanted, that means finally wherever we give devotional seeds, so those people finally should come to the safe place. In a safe community, nicely they should practice their bhakti.
So till that time we should bring. Otherwise, so they feel difficulty actually. Main problem is, so they struggle if they are in an association of non-devotees whose spirit is just earning money and material sense gratification. In their association, our devotees are there. They feel very difficulty actually. So that's why. So initially you should be knowing the complete picture and you work on the where you are, and gradually you should see that you should create such a comfortable place for the devotees where they can nicely practice their devotion. We should bring for that, like that. So we should have complete picture because we are not the inventor of this movement. Prabhupada is our leader actually. So we should try to follow. So his sketch, whatever sketch he made, we should follow. So we should endure slowly we increase and we try to explore the opportunities to have a community, then how to. So for that also we are helping the Varnashram. So we give you some more detailed guidelines when people want particularly. So we make, some people are interested and some people will go more and more into deeply Sankirtan. No problem. So we want people in all four movements, we want devotees. So all four are important actually. So not one is important. Because everything will boost another actually. If you skip one step, then it's a difficulty actually. Without temples, you cannot sustain, you cannot teach the people that devotional culture. Similarly, without initiation, we cannot make them determined actually. So, and without Sankirtan, nothing will begin actually. So, and without the community, then we cannot bring them to the 24 hours doing bhakti devotion. So, such a level we cannot bring. So, it's very difficult actually. So, that's why it's a systematic approach Prabhupada gave. So, we have to, so as per our circumstance, so slowly we should, justification we should do for all the movements. Okay, thank you very much. So, our last question actually. Last. Because you are getting late and you will be tired and you will be having another plan. Hare Krishna. Thank you for this lecture. तो जी एक्चुअली मेरा इतना बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था. अजीब सा क्वेश्चन मेरे वहाँ बोल रहे हो तो बोलिए. लाइक आपने बताया था ना कि हमें लाइक किसी वैश्य की निंदा वगैरह नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, इक्वल हो. तो मुझे लाइक हम जब स्पेशलिटी में होते हैं, भक्ति में होते हैं, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स भी होते हैं. तो अगर हम उन फ्रेंड्स के साथ मजाक वगैरह करते हैं, तो अगर उनमें से मतलब वो दिखाते नहीं है कि आप बुरा मान के, अगर बुरा मान जाते हैं तो क्या उससे भी अपराध वगैरह लगता है? नहीं है ऐसा. जैसा देखिए, वो आप फ्रेंडशिप से आपके हृदय में कोई ऐसा भाव नहीं है और ये वो लेते तो होगा. आपके हृदय में नहीं, लेकिन उनके हृदय में तो हो जाएगा. Easily you should see how he is sensitive of your words. Based upon that we should be. हम सोचते तो हल्का है, लेकिन उनको तो हल्का नहीं लगा. तो भक्ति महारानी गुस्सा हो जाएगा. उनकी हृदय में भी बैठा हुई है भक्ति महारानी. वो सोचती है अरे ये तो दुखी है इनकी बातों से, चलो तब वो ले लीजिए अपराध. जो मजाक कर रहे हैं आपसे, वो मजाक करे तो कोई समस्या नहीं. लेट डू नो, इट विल नॉट ऑफेंस. बट जो आपको मजाक को सीरियसली ऑफेंड मानता है, तब तो डिफिकल्ट है. इसलिए बी केयरफुल इन द मेकिंग एसोसिएशन, मेकिंग फ्रेंडशिप एक्चुअली. मुझे वो जानबूझ के कहे कि मैं ऑफेंस ले रहा हूं, लेकिन सेंसिटिवनेस माने उनकी जब हमारी बातों सुनते हैं कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, ये सब देखना पड़ता है. तो दैट यू विल, दैट्स व्हाई एज मच एज वी एसोसिएट वैष्णवास, देन वी विल लर्न दिस सेंसिटिवनेस, हाउ टू सी द पीपल्स मूड एंड हाउ दे आर लाइक इट. ओके, थैंक यू वेरी मच. श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद. हरे कृष्णा. हम बहुत सौभाग्यशाली, प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से हमें 4 मूवमेंट बारे में बताया. हम एक ही मूवमेंट जानते थे, तो प्रभु जी इसको कैसे, उस मूवमेंट को हम अच्छे से फॉलो कर सकते हैं. 4 मूवमेंट को प्रभु जी ने समझाया है बहुत साइंटिफिक तरीके से और बहुत प्रमाणिक तरीके से. प्रभु जी जो भी बताते हैं सब कुछ शास्त्रों से, प्रभुपाद के लेटर्स नहीं होता है. कुछ भी प्रभु जी अपने मन से स्पेकुलेट नहीं करते. ये प्रभु जी खासियत है. और प्रभु जी का विशेष प्रेम द्वारका भक्तों से है. और प्रभु जी ने जो श्लोक भोजन कहा है, इसके लिए हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं द्वारका, और जब प्रभु दिल्ली आएंगे तो एक बार प्रभु जी का संग स्टाफ क्लास में भक्ति वैभव कोर्स में एक बार मिला है. और आई थिंक फरवरी में प्रभु जी आए. नहीं, 24 February 1st. February 1st एक्चुअली अभी है क्लासेस. तो प्रभु जी जब भी आएंगे तो उस श्लोक को एक्सप्लेन करने के लिए प्रभु जी समय देंगे. प्रभु जी चाहते हैं हरे कृष्णा.